Okay. So seems to be few of them are audible and visible also. So welcome to all of you on the session for all about articleship. That is something which is hard earned, and finally you have come to the line which you have crossed. You are a CA finalist. So a big round of applause to all of you. I have few of my students who are all India rankers. Pushman Chanda, All India rank 19. Aditya Rajput, if I am correct, All India rank 45. Congratulations, bachcho. Thank you very much. And I think if Mr. Joshi is there, Ayush Joshi, if I am not wrong with the name, he is AIR 47. Correct? So, congratulations. Without wasting much of the time and coming to the real agenda for what we are today here, आप सबको आर्टिकलशिप करनी है. You have got loads of questions and loads of questions if you want to see. So I can show you one thing that just a minute. Okay. So this screen is visible to you right now. So our agenda is what, how to apply, where to apply, what questions will be asked, which city is better, how to approach for articleship, which department, and planning of CA final studies. These are our agenda points. Am I correct? Okay. So one being this being the agenda points. एक एक करके शुरुआत करते हैं. First of all, having a proper CV. Okay. So once you want to have a proper CV, there are few must have things, do's and don'ts. So all of you are ready with your notepads. Notepad hai? Give me a yes or no. If you have the notepad. So can I start putting up things on notepad for you? Sir, first of all, first things first, when you are talking about having a proper summary version of your CV, few things you need to keep in mind from day one. CV has to be unique because you are unique. Okay, so don't get into a situation कि मेरा CV दूसरे से match कैसा होता है. I've seen many of the kids doing, give me that format of your CV, I will change my name place animal thing and then also put it across. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना, ऐसा कुछ मत करना. ओके, सो फ्यू कंपल्सरी पॉइंटर्स. CV, preparation level, इंटरव्यू रेडीनेस. ओके, आप में से कुछ बच्चों से आई वुड रिक्वेस्ट, लाइक निदा इज ऑन विद द कैमरा, इट्स गुड. इफ ऑल ऑफ यू कैन कीप योर कैमराज ऑन, दैट विल हेल्प यू. आई टेल यू हाउ. यू विल बी अलर्ट विथ योर सेल्फ, नहीं तो आपका ध्यान इधर उधर जाएगा. सो ऑल ऑफ यू हु आर कंफर्टेबल इन ओपनिंग अप योर कैमराज, इट विल बी गुड. ओके, so that will help you actually to remain more concentrated, and that is there are also few do's and don'ts which I will tell you when, because you might be having a interview online also. Correct? So having an online interview also requires certain do's and don'ts which I will come to. So first of all, CV preparation. Point number 1 on CV. First of all, shall be one pager. एक पेज में काफी आ जाएगा. Font size 10 to 12. That's it. Font size 10 to 12. और font कौन सा ले सकते हो?
टाइम्स न्यू रोमन बहुत बोरिंग होता है इफ यू आस्क मी. सो वो लास्ट प्रेफरेंस पे रखना, कैलिबरी. इसके बाद आपका एरियल एंड देन टाइम्स न्यू रोमन. ओके. देन अब आप अपने जब एक बहुत डिबेट चलती है फोटो लगाऊं या नहीं लगाऊं. So my suggestion always is, because right now we are in Madhya Pradesh where you can identify from your name the gender as male or female very easily. But when you are applying in places which are Cosmo and Metro, different type of people come in. मेरे हिसाब से if my personal view is taken, I prefer a photograph. So it's optional. It's not compulsory. Let me tell you that. Okay. So it's an optional thing, but if that is there, should not be a problem. Okay. So photo is optional. और फोटो कौन सा, जो इंस्टा प्रोफाइल पर है वो, जो व्हाट्सएप प्रोफाइल पर है वो, या एक प्रोफेशनल फोटो. दर्शन ठीक वैसे ही मुस्कुरा रहा है जैसे क्लास में बैठे बैठे मुस्कुराता रहता था, बोले सर चुटकुला मार रहे हैं बीच बीच में. कौन सा फोटो आएगा बताओ मेरे को. सर ऐसा वाला. फॉर्मल. ऐसा फोटो आएगा, यूं आएगा. खबरदार ऐसी टी शर्ट में फोटो डाला तो, ये टी शर्ट अब मैं पहन रहा हूँ सैटरडे को, कृपया करके आप लोग ऐसी टी शर्ट में फोटो न डालें. अब मैं पहन सकता हूँ, ठीक है. आई एम ट्रेनिंग यू. सो इट्स अ लिबर्टी ऑफ सैटरडे इवनिंग, नॉट विथ यू. ठीक है. सो फोटो इज ऑप्शनल पर फॉर्मल वन. एंड फॉर्मल फोटो ऐसा नहीं है कि स्टूडियो जाके खिंचवाना है. घर में ही आप एक प्रॉपर कोट या सूट या शर्ट पहन के वाइट बैकग्राउंड की दीवार पे खड़े होके खिंचवा लो घर पे. ऐसा कोई जान, इतने फिल्टर तुम लोगों को आते हैं कि तुम वो फॉर्मल फोटो खुद का बना सकते हो. ओके. फोर्थ, आपका ईमेल आईडी प्रोफेशनल होना चाहिए. प्रोफेशनल ईमेल आईडी का मतलब क्या होता है. Satvik007.bond.gmail.com है ना. तो दिक्कत कृष्णा हैपनिंग सोनी.com या @gmail.com फॉर्मल ईमेल आईडीज बने हुए हैं या नहीं है. हाँ, ऐसा हो सकता है कि कृष्णा सोनी 07 @gmail.com, सात्विक अग्रवाल 1414. लक्षिता बेटा सरनेम क्या है आपका. सर नाइक. हाँ, तो लक्षिता नाइक 22, लक्षिता.नाइक 24 ऐसा कुछ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. बिकॉज रातों रात अब आपको लक्षिता.नाइक@gmail तो मिलने वाला नहीं है. करेक्ट. तो जस्ट मेक श्योर. अब जैसे ये दिया है दर्शन ने, दर्शन SH121 @gmail.com, इट्स फाइन, इट्स ओके. समझ गए. मतलब वो नहीं होना चाहिए. अब निदा अगर लिख रही कि क्यूट डॉल @gmail.com, archie.asterisk@vijayvargiya@gmail.com, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके आरची. हाँ, tarun05jain@gmail.com, इट्स फाइन. वंशिता जैन 417 चलेगा. मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. नंबर्स तो आएंगे, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो. ठीक है. ओके. So email ID has to be professional. Then let's come to how do you structure your resume. Okay. क्या होगा, इधर खसक जाऊं. Okay, so my cameraman Sanjay Bhaiya says me कि you shift so that you don't block your screen. Thank you Sanjay Bhaiya. Too much of underlining and bold is not needed. समझ में आया. क्यों मारेगा. और हम मारते पड़ते हैं. साकला जी क्या कुछ आवाज हो गई, बंद करवा दो भाई. अच्छा. अभी डांट सुन लेते अपन किसी की. ओके. टू मच ऑफ अंडरलाइनिंग एंड बोल्ड इज नॉट नीडेड, ये हो गया. और उसके बाद आता है, हाँ,
6th ईमेल आईडी हो गया। हाँ, डू यू ऑल हैव लिंक्डइन आईडीज? कितने बच्चों के पास लिंक्डइन आईडी नहीं है अभी? हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट ऑन लिंक्डइन? जो नहीं है, तरुण जैन इज नॉट ऑन लिंक्डइन, ओके। हु एल्स? रोहित साखला, केशव, मिस्टर आर एम, आई डोंट नो हु इज आर एम, बट ठीक है। So please have a LinkedIn ID, okay? You should have a LinkedIn ID. Okay? नहीं होता है तो बनाओ। जितनी स्पीड से इंस्टाग्राम आईडी बनाया था ना, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, पर बनाना। अब आने वाले जमाने में तुम्हारा इंस्टा वही है। बंद करो ये रीलें देखना। अभी तुम ऐसी रीलें देख रहे हो, मुझे मालूम है। ये बंद करो सब। माई स्टूडेंट्स आर स्माइलिंग, बोले ये सुधरेगा नहीं, ऐसे ही पढ़ाएगा ये, ऐसे ही बताएगा। मैं ये सब नहीं करूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम लोगों को। हाँ सुजल? यस सर। देखो आदित्य भी बोला, आप ये नहीं करोगे तो आप नहीं रहोगे। आई रियली मिस आदित्य, अपन ने ना वो एसएम के दौरान कितने सारे कॉन्वर्सेशंस किए थे। आई रियली लव्ड दैट। वो प्री रिजल्ट तुम लोग की जो अर्ली बर्ड बैच थी ना, उसमें जो कॉन्वर्सेशंस हुए थे ना अपने मॉड्यूल पे, वो बहुत अच्छे हुए थे। आई रियली इंजॉयड दैट। पता है, अभी कोई ऑनलाइन पूछता है ना सर, तो मैं टीम को बोलता हूँ मेरा वो अर्ली बर्ड का रिकॉर्डिंग दो उनको। इट वॉज रियल फन। तो यू शुड हैव अ लिंक्डइन आईडी, करेक्ट? ओह, मिस्टर आकाश पटेल, योर क्वेश्चन is very relevant but it has to come down. So if you want कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले, तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाओ, degree2placements.com, सारे क्वेश्चंस हैं वहां पर, फिर यही करो बैठ के। वो कह रहे हैं आई रिक्वेस्ट इफ यू कैन एड्रेस व्हाट आर द क्राइटेरिया टू गेट शॉर्टलिस्टेड एज आर्टिकल असिस्टेंट इन बिग 4 और से बिग 6, आल्सो एड्रेस हाउ मच स्कोर इज इनफ फॉर द सेम। So am I not doing that? I am trying to tell you how to draft your CV, what to do, what not to do. Are these not those minimum essential things which you will be needing, sir? Mr. Akash Patel? Patience, man, patience. तो अपन पहुंच रहे हैं वहीं पे। आप लोगों को मैं आज 1 सवा घंटा पढ़ाने वाला हूँ, अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। इज दैट ओके नाउ? यस कुछ, आई रियली मिस माई लेक्चर्स विद ऑल ऑफ यू, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, चलो कंटिन्यू। यू शुड हैव अ लिंक्डइन आईडी। नाउ पॉइंट इज हाउ डू यू स्ट्रक्चर योरसेल्फ। ठीक है, जब आप रिज्यूम को स्ट्रक्चर करने की बात करते हो तो एक चीज का ध्यान रखना। नाउ आई एम ड्रॉइंग अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज योर पेज, ओके, दैट माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें भी आप बनाओगे। अब बच्चे पूछते कैनवा में बनाऊं, वर्ड में बनाऊं। आप वर्ड में भी बना सकते हो, बट एट द एंड शेयरिंग हैज टू बी कंपल्सरली इन पीडीएफ, ये ध्यान रखना। ओके, इट हैज टू बी कंपल्सरली इन पीडीएफ। रीजन बीइंग, if you send a word file and your ms word version is different than the ms word version of someone else, then you will have an issue. So it's better to send a pdf. Okay, now what will happen is first line ऐसा अगर आपका आता है, for example if I take the name, इसका नाम है इधर निदा। निदा फुल नेम इज निदा अली ना? निदा अली ना? सर सैयदा निदा अली। चलो तो फिर मैं मिक्सअप नहीं करूं तो मैं कृष्णा सोनी का नाम ले लेता हूं, ठीक है? हाँ, सो इफ फॉर एग्जाम्पल कृष्णा, तो अगर कृष्णा सोनी है तो कृष्णा सोनी यहाँ आना चाहिए, सीए और कॉमा के बाद सीए फाइनलिस्ट। फिर यहाँ मोबाइल आना चाहिए और उसके बाद ईमेल आईडी आना चाहिए। और जब आप ईमेल आईडी लोगे, उसके बाद ईमेल आईडी लिखने के बाद एंटर मारना, सो दैट इट बिकम्स अ हाइपरलिंक। हेलो, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ध्यान रखना। सीए लोग भी करते हैं, सीए बनने के बाद ऐसा मत करना। ओके, सो ये हाइपरलिंक हो गई। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 2 लाइन का होना चाहिए। चैट जीपीटी से जनरेट मत करना, खुद की लैंग्वेज में लिखना। सब मालूम है मुझे, तुम लोग बहुत छाने हो। तुम्हारा बस चलता तो तुम चैट जीपीटी से पेपर भी करवा लेते।
ओके, सो ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद आता है क्वालिफिकेशंस। अब क्वालिफिकेशन में दो तीन तरीके हैं। कुछ बच्चे आपको बोलेंगे, ये कुछ जगह पे आपको फॉर्मेट मिलेगा ऐसा बॉक्स बना हुआ, बराबर। और बॉक्स में आप सबसे पहले डालोगे सीरियल नंबर, उसके बाद आप डालोगे एग्जाम बोर्ड स्कोर, ठीक है। अब ये होना चाहिए लेटेस्ट शुड बी द फर्स्ट। तो अभी आपका सीए इंटरमीडिएट सबसे ऊपर आएगा, फिर सीए फाउंडेशन आएगा, उसके बाद 12th आएगा, उसके बाद 10th आएगा, करेक्ट। अब इसके अंदर जब आप बोर्ड में लिखने जाओगे तो आप द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया लिखोगे तो जगह ज्यादा घेर लेगा वो। तो आपको सिर्फ लिखना है ICAI। और 12th और 10th में आपका CBSE MP बोर्ड जो भी हो। अब जैसे स्कोर आया तो स्कोर में 600 में से आप सबके 300 ऊपर तो हैं ही, तभी तो आप इस सेशन में बैठे हो। ओके, सो इफ यू हैव लेट्स से 300 या 350 जो भी है। अब अगर ऐसे केस में चेतन बागला जी एकेडमिक और प्रोफेशनल है क्या? अभी आपकी एक ही क्वालिफिकेशन सेट है ना, आप सीए नहीं बने हो अभी पूरे, तो आप जगह ज्यादा घेरोगे, दो बॉक्स बनाओगे, जगह ज्यादा घेरोगे, कोई मतलब नहीं है उसमें। इसके बाद अब सवाल उठता है, सर मेरा कोई एग्जेम्पशन आया, मेरी कोई रैंक आई, जैसे मेरे पास अभी आदित्य बैठा है, कुश बैठा है, कुश ने 19th रैंक स्कोर किया है, आदित्य ने 45 किया है, तो उसमें लिखना चाहिए स्कोर में साथ में स्कोर इतना एंड देन सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 19 45 एज द केस में बी, सिक्योर्ड एग्जेम्पशन इन 2 पेपर्स। आप में से कुछ बच्चों को एग्जेम्पशन आए होंगे अबव 60, बराबर। सिमिलरली इफ यू हैव a score इन सीए फाउंडेशन, तो सीए फाउंडेशन के सामने आपको लिखना चाहिए वो एक स्पेशल बात जो भी कुछ होगी, ठीक है। हाँ, अब अगर आपने दोनों ग्रुप एक साथ पास नहीं करें, इफ यू स्कोर क्लियर योर ग्रुप्स 1 by 1, तो जो ग्रुप अभी क्लियर किया है वो पहले और उसके बाद नीचे, बराबर। सो इफ वन क्लियरेंस इज इन Jan 25, अदर वन इज इन May 24, सो Jan 25 पहले आएगा, फिर May 24 आएगा। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एनीथिंग यू वांट टू आस्क बच्चों? हेलो, ओके। हम लोगो चालू करना भूल गए हमारा। ठीक है, ओके, नो क्वेश्चन आस्क्ड हियर, ग्रेट। इसके बाद आता नीचे है आपकी आईटी स्किल्स या सर्टिफिकेशंस। तो आपका आईटी ओसी, कुछ बच्चे बोलते हैं अभी हमारा चल रहा है या हमारा होना बाकी है, कुछ बच्चे बोलते हैं हमारा हो गया है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू लिस्ट आउट, करेक्ट। तो आपको ऐसे लिस्ट आउट करना रहेगा उस चीज को। आई विल जस्ट शो यू, आई हैव अ स्मॉल टेम्पलेट ड्रॉन फॉर दिस, मैं दिखा देता हूँ आपको। ऐसे लिखा अपन ने, नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एकेडमिक अचीवमेंट्स अगर आप में से किसी के कुछ हो तो, करेक्ट। एकेडमिक अचीवमेंट्स अगर हैं तो, और नहीं है तो चिंता मत करो, ये भी बहुत अचीवमेंट है कि हमने इंटर क्लियर कर लिया है। हाँ, नहीं तो ऐसा मतलब मैंने बच्चों को देखा परेशान होते हुए कि अरे ये तो रहा ही नहीं, ये तो ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑप्शनल। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ अचीवमेंट्स, इफ यू स्कोर्ड सम रियल गुड मार्क्स, if you got some certificate of merit, if you got some recognition there, okay, any questions on this? अच्छा, ये हैज एनीबडी बीन डूइंग समथिंग और द अदर, मतलब जब तब एग्जाम दे दी और हम एक आध महीना कहीं और काम कर रहे हैं, अभी किसी सीए ऑफिस में चले गए, हमने कोई अलग से प्रोजेक्ट पे काम करा, ऐसा कोई है क्या? इज एनीबडी देयर लाइक दैट?
सर इतना ही मेहनत कर ली थी, क्या करेंगे। ओके, तो अगर आपने ऐसा कुछ किया होता तो वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 months एट एबीसी एंड कंपनी लिमिटेड, एबीसी एंड कंपनी आप लिख सकते थे, पर बाकी जरूरी नहीं है। वो करिकुलर्स में आपने डिबेट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एमयूएन वगैरह में पार्टिसिपेशन किया हो तो वो आप पार्टिसिपेशन लिख सकते हो वहां पर। ठीक है, अब ये मत बोल देना पार्टिसिपेटेड इन लेमन स्पून रेस इन क्लास 3। हाँ, मतलब इतना भी पुराना नहीं चाहिए, विच शुड बी रेलेवेंट। करेक्ट। एंड देन इट कम्स विद पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स के अंदर डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड फादर्स ऑक्यूपेशन। फादर्स ऑक्यूपेशन, आपके पापा भले सब्जी बेचते हो, आपके पापा भले चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके पापा भले बैंकर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपको इस चीज की शर्म नहीं है तो लिखने में भी शर्म नहीं आना चाहिए। इससे कोई जज नहीं कर सकता, चिंता मत करना। ओके। पर्पस ये रहता है कि अगर आपके पापा स्मॉल बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो उनको ये पता है कि आपको हर चीज की कद्र होगी। और अगर आपके पापा प्रोफेशनल है तो उनको ये रियलाइज होता है कि यू नो फ्यू थिंग्स। बट कहीं से कहीं तक उस चीज को आप छोटा मत मानिएगा, ये मैं बता दूं। ओके। उसके बाद आती है वर्ड हॉबीज। सर हमारे पास हॉबीज हैं, तो हॉबीज कौन सी? स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, वॉचिंग रील्स इज नॉट अ हॉबी। सर्फिंग इंटरनेट इज नॉट अ हॉबी। यूजिंग चैट जीपीटी इज नॉट अ हॉबी। Okay, listening to music, reading books is also an open-ended statement. What kind of music, what kind of books? अब आप ये मत बोलना studying, reading study material is my hobby. That was not your hobby, that was your compulsion. So please be very clear on all this. ठीक है। हाँ, प्लेइंग क्रिकेट। अस्मित 1.5 पेज का भी सीवी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 1 पेज होने का ये मतलब नहीं कि जैसे तैसे 1 पेज में ही सब फंसाना है। अगर आपका 1.25 पेज जा भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो 1.25 पेज आपकी फॉर्मेटिंग की गलतियों से न जाए। सी डोंट लीव लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन अ सी। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये मैंने जो 3 बातें जो आपको पहले ही बोल दी। कैन यू सी मी एट gmail.com नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर, नेम इन ईमेल सिग्नेचर, हाँ ये ईमेल सिग्नेचर में होना चाहिए। मोबाइल नंबर एंड नेम, आपके जो ईमेल जा रहा है ना उस ईमेल में सिग्नेचर में आपका नाम और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि सामने वाले को मेल पढ़ के लगता है मेरे को कांटेक्ट करना है तो इमीडिएटली उसको रेफरेंस देता है सामने सामने। यहां तक कोई प्रॉब्लम? हेलो। ओके, अनुष्का हैज अ पर्टिकुलर पॉइंट। सर माय आईटीटी इज नॉट येट कंप्लीट। नो प्रॉब्लम्स बेटा, आप लिख सकते हो आईटी ट्रेनिंग परस्यूइंग शेड्यूल टू कंप्लीट ऑन दिस डेट। समझे बेटा अनुष्का? सिग्नेचर में आपका मोबाइल नंबर और नेम होना चाहिए ऋषि, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। वो जसलीन और वो सब आए कि नहीं आए? ओके, एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ हियर? नो। ग्रेट। नाउ इंदौर में अगर आप बच्चे जा रहे हो सीवी लेकर, आप भले ईमेल भेजो। प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इंदौर इज स्टिल एन एक्सेसिबल सिटी, इट इज नॉट मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर। ओके, if in Indore you are going there, you are supposed to take an envelope, and on that envelope, ये envelope का बैक साइड होगा, envelope का फ्रंट साइड पे आपका नाम होना चाहिए और नाम के साथ लिखा होना चाहिए सीवी ऑफ, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग सीवी ऑफ दीपक मूलचंदानी, बोथ ग्रुप्स क्लियर, लेके लिफाफे में डाल के लेके जाने का है। वहां ऐसा मत कर देना जाते से, इसे फाइल में से यूं निकाला, लो आर्टिकल से भेजा, ऐसा कोई नहीं करेगा। हाँ, ये ध्यान रखना। आप
अपना मन बना के चलना, सुनो, आप अपना मन बना के चलना कि आपको कम से कम 25-30 जगह भी देना पड़े तो शर्म मत करना। क्या है, विथ कोविड एंड एवरीथिंग यू थिंक एवरीथिंग इज ऑनलाइन, प्लीज अंडरस्टैंड, as a medical student or a law student chooses the college or the company or the lawyer with under whom or he or she will work, similarly you are going to choose an articleship firm which is going to create a lot of impact on you in terms of the work. So you need to understand the firm well, they need to understand you, so you need to present yourself in a proper way, correct? तो ये एक चीज हो गई। कैसे जाएगा, एनवेलप में, और एनवेलप पे ऊपर क्या लिखा रहेगा, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, और नीचे बोथ ग्रुप्स क्लियर्ड। यहाँ ग्रुप 1 ग्रुप 2, अगर दोनों ग्रुप एक एक करके भी क्लियर हो तो आपको लिखना बोथ ग्रुप क्लियर। इससे क्या होता है, एनवेलप खोलते से ही पता चल रहा है मेरे रेडी स्टूडेंट है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? हाँ, दर्शन ऑन mi@gmail.com चलेगा। योर फ्रेंड हैज अ क्वेश्चन, सो योर फ्रेंड कैन नॉट टाइप क्या, पर ठीक है। हाँ अनमोल, नाउ वी आर कमिंग टू वन बाय वन। ये आपका बेसिकली सीवी तैयार हो गया, आप वहां पहुंच गए, ठीक है। अब सवाल उठता है स्मॉल सिटी वर्सेस बिग सिटी का, करेक्ट? अच्छा, कोई फ्रेंड फर्म में है उसके साथ हम सीवी भेज दे तो, प्रांजल इज इट पॉसिबल फॉर यू टू गो टू दैट पर्टिकुलर फर्म? टेल मी फर्स्ट, इज इट इन, यू आर इन द सेम सिटी वेयर द फर्म इज देयर? टेल मी। So then what is stopping you from going to the firm? Go and check the vibe, go and check the style, go and check them, and let them check you. Are you capable for them and are they capable for you? वही तो कहना है। ऐसा कैसे कर सकते हो आप? Why do you want to, आप, ओसी ट्रेनिंग कितने बजे खत्म हो जाती है प्रांजल? ओसी ट्रेनिंग कितने बजे खत्म होती है? 5 बजे बाद नहीं जा सकते हम? आईसीआई के ऑफिस में ही वॉशरूम है, मुंह धोने का, बाल बनाने का, क्रीम लगाने का, अच्छे से हाथ में एनवेलप लेके फ्रेश होके जाने में क्या प्रॉब्लम है? प्लीज समझो बेटा, व्हाई एम आई सेइंग सो? You are going to commit 2 years and if you show that sincerity that I am here, the person understands that। और तुम किसी के हाथ सीवी भेजोगी तो वो भी अंडरस्टैंड करता है कि ये भी कैजुअल है। ओके, मेरा काम है समझाना। ओके, अब फटाफट अपन आते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें और डिस्कस करनी है। स्मॉल सिटी वर्सेस बिग सिटी, स्मॉल सिटी के प्रोज क्या हैं? ट्रैवल टाइम कम लगेगा आपको स्मॉल सिटी में, घर का एक्सेस रहेगा आपको, नो स्ट्रगल फॉर बेसिक्स, लॉन्ड्री, फूड एंड मेडिसिन। ये सब बड़े सिटी के कॉन्स बनते हैं। आपका ट्रैवल टाइम बढ़ेगा, आप घर से दूर रहोगे, आपको लॉन्ड्री, फूड, मेडिसिन का स्ट्रगल रहेगा। स्मॉल सिटी के अंदर कॉन्स क्या होते हैं? स्मॉल सिटी में दिक्कत क्या होती है? एक्सपोजर हमको लिमिटेड मिलता है, इंटरेक्शन विल बी लिमिटेड। ये बड़े शहर के प्रोज होते हैं। तो जो छोटे शहर का फायदा वो बड़े शहर का नुकसान, जो बड़े शहर का फायदा वो छोटे शहर का नुकसान। ओके, अब लार्ज फर्म में आप जब जाते हो तो सवाल उठता है, सर विल आवर एक्सपोजर भी लिमिटेड टू वन डिपार्टमेंट? ये लाइन सुनी होगी तुम लोगों ने बहुत जगह। अब होता क्या है, ये काम कैसे करती है ये देखो अब तुम मेरे साथ। इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस इन योर चार्ट, इन योर पैड, इट विल हेल्प यू। ओके, पूरा का पूरा अपना सीए प्रोफेशन बेसिकली 2 कैटेगरी में काम करता है। अनुष्का, दिस विल आंसर योर क्वेश्चन। अनुष्का का क्वेश्चन है यहाँ पे, इन मेनी लिंक्डइन फॉर्म्स दे आल्सो आस्क फॉर 2 प्रेफर्ड डोमेन्स, हाउ डू आई डिसाइड दैट सिंस बिसाइड टैक्स एंड ऑडिट आई डोंट नो व्हाट अदर डोमेन्स आर लाइक एक्सेप्ट फॉर देयर नेम्स, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर प्राइसिंग और आईबी। करेक्ट, अब मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ यहाँ पर वन बाय वन। सर अश्योरेंस, ऑडिट और टैक्स, तो बेसिकली हमारा सीए प्रोफेशन मेन 2 काम करता है।
अश्योरेंस एंड टैक्स। अश्योरेंस मतलब वर्ड ऑडिट, ऑडिट के अंदर दो मिलेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का दूसरा नाम है रिस्क एडवाइजरी। हेलो, इंटरनल ऑडिट का दूसरा नाम है रिस्क एडवाइजरी, इट इज इंटरनल ऑडिट। इतना तो आपको भी पता होगा ऑडिट का पेपर लिखने के बाद। इंटरनल ऑडिट इज एन ऑडिट बाय द मैनेजमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। दे विल गिव यू द स्कोप, दे विल आस्क यू थिंग्स, यस और नो। हेलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट मेकिंग सम सेंस? ओके, चलो विल कंटिन्यू। So now once you get into stat audit, internal audit, sir, statutory audit is something which will require a lot of understanding, and basically chartered accountants are made for statutory audit if you ask me. लेकिन आपकी मेरी पढ़ाई हमें इतना केपेबल बना देती है कि हम इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं। When you talk about statutory audit thing, so you will be doing the audit in a bigger sense. That is called a risk-based audit. So they will decide, they will do planning, audit planning will happen, materiality level be decided, and some things will be material और immaterial. ये सब जो थ्योरी पढ़ी है ना अभी तक, वो अब सब प्रैक्टिकल के रूप में दिखना चालू होगी। When you talk about a bigger firm doing multinational which has got multiple companies or multiple factories, so sometimes the amount of error which may seem to be big enough at the factory level, and when you take it to the consolidated level for the whole company, it may sound immaterial to you. And then what will happen is, when a lot of things which are small immaterial combined together becomes material, then the risk of material misstatement has to be revisited. Hello, कुछ सुना सुना लगा या सुना सुना लगा? ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट सबसे फेवरेट, अगर सबसे पहले कोई फर्म मिलती है और अगर वो बोलते हैं ना हमको आपको स्टैट ऑडिट में डाल रहे हैं, सो दैट इज द बेस्ट थिंग। आई टेल यू व्हाई। सीए फाइनल पास करने के लिए तुम्हें 6 सब्जेक्ट्स का ज्ञान होना जरूरी है, जिसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफआर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये 3 तो चाहिए ही चाहिए। तो ये तैयारी पूरी की पूरी, और एक कंपनी लॉ और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब कुछ तुम्हारे काम आ जाता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज लाइक सबसे बेस्ट इफ यू आस्क मी, अगर मिल जाता है तो। जनरली मिलने में भी प्रॉब्लम जाती है। इसके बाद सवाल उठता है, सर अगर मेरे को टैक्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि होता है ना टैक्स में मुझे अच्छे नंबर आ गए, मेरे को टैक्स अच्छा लगता है। एक बात बता दूं, टैक्स में आ गए और अच्छा लगता है वर्सेस रियल लाइफ में पूरा का पूरा इनकम टैक्स आप अकेले हैंडल नहीं करोगे। ठीक है, बड़ी फर्म्स के अंदर, कंपनीज के अंदर 2 डिपार्टमेंट रहेंगे, डीटी और आईडीटी। डीटी के अंदर कॉर्पोरेट टैक्सेशन रहेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग रहेगा, अनुष्का जोशी ध्यान से सुनना, पैस रहेगा, पैस इज पीपल एडवाइजरी सर्विसेज, उसको जीबीएस भी बोलते हैं, ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। और आईडीटी के अंदर भी जीएसटी रहेगा, और जीएसटी के अंदर 2 ब्रांच रहेगी, लिटिगेशन और कंप्लायंस। लिटिगेशन मतलब जब आप अपील्स और ट्राइब्यूनल्स में जाके सरकार के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हो, वो लिटिगेशन हुआ। कंप्लायंस वो जो आप जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 2 जो सारे रिटर्न्स भरते हैं, उनकी लास्ट डेट्स पता है तुमको कि नहीं पता है? कौन से महीने में एक 10 तारीख तक कौन सा जीएसटी रिटर्न जाता है, हर महीने की अगली 10 तारीख तक? बताओ। जीएसटीआर 1, वेरी गुड पीहू। अच्छा, 20 तारीख तक क्या जाता है? जीएसटीआर 3B, वेरी गुड। और टीडीएस कब तक जमा करना है? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, वेरी गुड। और पीएफ और ईएसआईसी? पीएफ ईएसआईसी कब तक जमा करना है? नेक्स्ट मंथ की 15th तक। हेलो, आया नहीं आया? हम्म, ओके, ध्यान रखना। ठीक है, सो व्हेन यू डू दिस,
आपको एक चीज समझ में आएगी, अगर आप कंप्लायंस में जाते हो तो आप ये डेट्स का काम करोगे, और अगर आप लिटिगेशन में जाते हो तो यू विल अंडरस्टैंड द लॉ, इंटरप्रेट द लॉ एंड हेल्प इन ड्राफ्टिंग. आईडीटी जीएसटी क्लियर? Give me a yes or no. I will go accordingly. डायरेक्ट टैक्स में आता हूँ अब मैं. डायरेक्ट टैक्स के अंदर एक बात करी, कॉर्पोरेट टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कंपनी का जो टैक्स रिटर्न होता है, मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट के सिलेबस में तुम लोगों को कंपनी का इनकम टैक्स कंप्यूटेशन था या नहीं था, ये मुझे बताओ. जहां तक मुझे ध्यान है था तो सही, पर बहुत शैलो लेवल पे होता है. सिर्फ टैक्स रेट्स थे. So the computation of income tax for companies is a very elaborative and detailed thing. So there you will be required to do that in corporate taxation. ठीक है? Now we come to very specific two niche profiles called transfer pricing and people advisory services. Now what is transfer pricing? Your income tax syllabus would have told you about some rates, some sections called section 92. Section 92 if you remember, which was talking about arm's length price. 92B, C, D, E, F. सुना था, देखा था, जाना था, या सिलेबस में नहीं था, या छोड़ दिया था? नहीं होगा. ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको. ट्रांसफर प्राइसिंग में होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी जो अलग अलग देशों में है, मल्टीनेशनल कंपनीज जब काम करती हैं, आपने ये आर्म्स लेंथ वाला वर्ड वैल्यूएशंस में सुना होगा आपके जीएसटी में, कि जो वैल्यू डिटरमाइन होती है अगर आप दो एसोसिएट कंपनी और सिस्टर कंसर्न के बीच में कोई ट्रांजैक्शन करते हो, तो जो वैल्यू होती है वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए. आर्म्स लेंथ मींस नॉन रिलेटेड, नॉन इंटरेस्टेड व्यक्ति आमतौर पर बिना जाने पहचाने जितने में वैल्यू में वो काम करता उस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन होना चाहिए. Am I correct? So now what happens is when there are multinational companies working with each other continuously, so what they expect is the transactions between associate companies and subsidiary companies between two different countries should be based on arm's length price. So section 92A, B, 92B, C, D, E, F of Income Tax Act talks about all this. So now what happens is bigger companies get an assignment that we will make sure that your transfer pricing matters are always okay. So they continuously keep track of all the transactions. So transfer pricing is a very specific department which works on transfer pricing aspects of multinational companies. Am I correct? Have you understood? Okay. Then is People Advisory Services, which is called Global Business Solutions, PAS. Now, People Advisory Services, what is it required? Sir, in People Advisory Services, what they expect is, number one, if I am a NRI, so I am moving in different countries, so residential status. For example, I am working in multinational companies and around 100 days I am in India, 30 days I am in Dubai, 70 days I am in Europe, and other 130 days I am in US. So now my income is going to be taxed based on different countries. Correct? So if I worked in India for 100 days, even if I am not an Indian resident, but the income which is received in India is deemed to be accrued and received in India and subject to taxation, yes or no? Hello? बस response मांगता है. Correct? So what happens is you will try to make the income tax returns of all these people working in multinational companies who are traveling in different countries. So you will be handling the NRI taxation or taxation of high net worth individuals, HNI. समझा क्या? Correct? Okay. So all these things give you a picture of what I am trying to tell you. इसके बाद और भी niche profiles होती हैं, जैसे FDD, Financial Due Diligence.
FDD क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अंडरस्टूड समथिंग कॉल्ड अमेलगमेशन. In amalgamation, when you acquire a company, what do? You calculate what? Tell me. You calculate purchase consideration. Am I correct? And the purchase consideration is calculated based on the balance sheet value or based on the information in relation to the balance sheet which is given to you. So it's based on the information. So now the information which you gather, वो तो question में ready-made मिलती है तुमको. Real life में, if Zomato wants to acquire Blinkit, I'll take a real example. If Zomato wants to acquire Blinkit, so Zomato will go and try to study the details of Blinkit, na? Abhi Blinkit doesn't have physical assets. So how the value of purchase consideration was determined is something to be thought about. And there might be, for example, Baiju acquired White Hat Junior. It's a classic case. White Hat Junior was acquired. So White Hat Junior had given a commitment to its customers that if you ask the questions, if you want the refund, no questions asked, we'll refund you the fee. So now what happens is, this is something which is not appearing in the books. These are all those contingencies. AS29, if you remember. So all these contingencies will create liabilities. Yes or no? Huh? Yeah, now. Hello. नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? सो व्हेन यू ट्राई टू डू थिंग्स लाइक दिस, तो वो फिर हो जाता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस. तो जो आप परचेस कंसिडरेशन की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो ना, इट हैपेंस ड्यू टू ड्यू डिलिजेंस. दैट इज अ वेरी हाई प्रेशर, हाई फाई स्टाइलिश वर्क, बट विल रिक्वायर लॉट ऑफ ब्रेन. और वो क्रैक कर गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको 10 या 12 दिन मिलेंगे. 10 या 12 दिन में आपकी पूरी टीम को उसका रिपोर्ट निकाल के कंपनी के सीईओ को बताना पड़ेगा, दिस इज द एप्रोप्रिएट परचेज कंसिडरेशन. एंड यू कैन बी वर्किंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, बाय साइड एंड सेल साइड. एक टीम जोमेटो की तरफ से जाएगी ब्लिंकिट को स्टडी करने, और एक ब्लिंकिट की टीम होगी जो जोमेटो को रिपोर्ट देगी कि हमारे हिसाब से इतना भाव आना चाहिए. और उन दोनों के बाद फिर कंपनी डिसाइड करती कि क्या परचेज कंसिडरेशन होगा. आया समझ में कि नहीं आया? हेलो. So that is FDD. Aditya, Kush, first attempt, both group pass outs, students should also try to get into FDD. वो फिर आपको अलग ही लेवल पे ले जाती है वो चीज़, क्योंकि जो लोग, बहुत सारे लोग जो सीए करते हैं और स्टैट्यूटरी ऑडिट बिग फोर वगैरह कर लेते हैं, तो वो जब सीए बनते हैं तो उसके बाद उनको FDD जाने का मन होता है. दैट इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप. तो अगर आर्टिकलशिप में आपको उस टीम में जाने को मिलता है तो नथिंग लाइक इट. नमन, फाइनेंस डोमेन वर्ड बहुत ओपन एंडेड और ब्रॉड है. आप क्या कहना चाहते हो फाइनेंस डोमेन? आपने पहले भी पूछा था फाइनेंस डोमेन, सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आर्टिकलशिप में फाइनेंस डोमेन अलग से क्या मतलब? आप वो कंपनियों में फाइनेंस कराओगे वगैरह, लोन्स अप्रूव करवाना और वो सब कुछ. आर्टिकलशिप, ये अगर आप मेरे से सीए प्रोफेशन के बारे में, सीए बनने के बाद बोलोगे तो मैं बोलूंगा 10 और ऑप्शन हैं, बट बीइंग इन आर्टिकलशिप यही सारे काम करने पड़ते हैं. Investment banking, articleship is very two different things, my friend. आप लोग लियोनार्डो डी कैप्रियो की वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट देखकर और खुद को इन्वेस्टमेंट बैंकर समझ रहे हो, जेपी मॉर्गन और वो उनके अंदर जाने की बात कर रहे हो, तो मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ. इंडिया में कभी भी अक्रॉस द टेबल आप कभी नहीं बैठ पाते हो. आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स यूरोप और अमेरिका में बैठे हैं, उन लोगों ने अपना बैक ऑफिस इंडिया में रखा हुआ है. आप उनके लिए पीपीटी बनाते हो, डेटा क्रंचिंग करते हो, यू विल नेवर फेस द क्लाइंट. ओके, रिमेंबर दिस. अब 2-3 आपके डाउट्स क्लियर कर दूं. बिग फोर के नाम जो हैं वो ब्रांड नेम्स हैं, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, केपीएमजी, ईवाई, और उनके जो लीगल नेम्स हैं जिसके थ्रू आपको आर्टिकलशिप रजिस्टर होगी वो अलग हैं. कृपया करके इसको नोट कर लें.
brand name is EY, firm name is SR Bartley Boy. PwC comes with 3 different names. One is Lovelock and Lewis, PwC CA LLP, and PwC Co. यूजुअली आर्टिकलशिप आपको मिलेगी लवलॉक एंड लुइस. ऐसा भी हुआ है, बच्चों ने ये किया, सर मुझे तो पता नहीं कौन लवलॉक लुइस भेज रहा है, मुझे तो बड़ा अजीब नाम लगा, मैंने मना कर दिया. वो नाम बड़ा क्यूट है, बट प्लीज याद रखना. सेकेंडली केपीएमजी. केपीएमजी का इंडियन नेम है बीएसआर एंड को. बीएसआर स्टैंड्स फॉर भरत एस राउत एंड कंपनी. बीएसआर एंड को, भरत एस राउत एंड कंपनी. ओके, ये हो गया. इसके बाद डेलॉइट का नाम आएगा, डेलॉइट हस्किंस एंड सेल्स. डेलॉइट हस्किंस एंड सेल्स. एक सेकेंड, आई विल बी ऑफ फ्रॉम द स्क्रीन फॉर अ सेकेंड. Just a second. ओके, डेलॉइट हस्किंस एंड सेल्स, ये चारों हो गए. ग्रेट. अब सर हमारा स्टडी शेड्यूल, तो अब आप हो 2025 में. ठीक है, तो अब आप 2025 में हो. इसको भी समझ लो. 2025, 2026, 2027, मार्च तक तो आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आपको मिलेगा एक ये बिजी सीजन, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, अक्टूबर तक जाएगा बिजी सीजन. बराबर. इसके बाद आप इधर चलोगे जैन फेब मार्च, फिर आपको एक और बिजी सीजन मिल जाएगा यहाँ पे. अब आपके आर्टिकलशिप खत्म हो, यहाँ के ईयर 1 कंप्लीट होगा, यहाँ के ईयर 2 कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको 2 बिजी सीजन मिलेंगे करने के लिए, जो आर्टिकलशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज यू गेट द एक्चुअल एक्सपोजर फ्रॉम क्लाइंट इंटरैक्शंस. करेक्ट. सो वंस यू कम टू 2027, when will you be getting your exams, tell me? Will it be November or will it be May 28? एक बात याद रखना, आर्टिकलशिप कंप्लीशन के बाद 6 महीने का गैप चाहिए. तो आपकी आर्टिकलशिप आपको 6 महीने कब खत्म होते हैं, 30 अप्रैल को. तो आपकी आर्टिकलशिप आपको वैलेंटाइन मार्च और अप्रैल फर्स्ट वीक में रजिस्टर करानी चाहिए. आर्टिकलशिप कंप्लीशन के 6 महीने बाद का गैप चाहिए. आप यू रिमेंबर दिस नाउ. और इस 2 साल के अंदर आपको 4 SPOM भी खत्म करने रहेंगे. SPM पता है 4 है या 2 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 है, नहीं 4 है. हाँ, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स. 4 है, 4. Self-paced online modules means what, sir? These will be subjects whose exam will not be taken, but they will be asked you to appear online, and you have to study and give online exams for this. Now, the best thing is you can continuously give exams for all this. So you select a time. तो आपका जब busy season चल रहा है, फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप में 1 या 2 निपटा दो, सेकेंड ईयर के दौरान निपटा दो, then parallel you will pursue your classes also. So ये याद रखना, it will not be an easy thing.
आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। ओके। जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर ये ध्यान रखना, आपका इन टाइम 9:30-10 बजे होगा किसी भी फर्म में, और आउट टाइम डिसाइडेड नहीं रहता है, बिकॉज दीज आर लाइक पीक मंथ्स ऑफ वर्किंग। 30 जून और जुलाई के बीच में सैलरी रिटर्न्स होते हैं, अगस्त सितंबर तक ऑडिट रिटर्न्स होते हैं, अक्टूबर तक आपके कॉर्पोरेट रिटर्न्स होते हैं, और अभी उन्होंने लेटेस्ट बजट के अंदर इसको रिवाइज कर दिया, शायद उसको अक्टूबर तक ले रहे हैं। सो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आपको रहना पड़ेगा। एंड माई सिंसियर रिक्वेस्ट इज, stop counting the hours once you get into the office. You are there for learning. You are not there for looking at other people saying कि अरे मैं तो जाता हूँ यार 5 बजे की, मेरे को क्या मतलब। एक बात बता देता हूँ, anybody who is in proper practice will handle clients till the first half of the day, afternoon 3-4 बजे तक, and after 4 o'clock he or she will start taking a stock कि हाँ ऑफिस में क्या काम चल रहा है। क्लाइंट उससे शाम को ही मिलने आते हैं। So when the boss is around and if you are around, you are bound to get good work and learn those things which no books will teach you. हाँ, otherwise if you want to be a सरकारी फेलो कि मेरा 6 बज गया मैं जा रहा हूँ, so then it is your prerogative. I learnt maximum things post 5 o'clock because I used to remain in the office. ये थोड़ा ध्यान रखना। And best thing is you all are blessed. Your articleship is only for 2 years now. Your batch will get 2 busy seasons. जो बच्चे बाद में अभी ज्वाइन करेंगे, जो बच्चे अभी एग्जाम बाद में देंगे, उन्हें बिजी सीजन प्रैक्टिकली एक मिलेगा, देख लेना आप। क्योंकि अब अगला रिजल्ट कब आएगा, मई एग्जाम होएगी, मई एग्जाम का जुलाई में आएगा, तो वो अगस्त सितंबर अक्टूबर में तो जब तक समझ पड़ेगी तब तक तो उनका वो एक बिजी सीजन निकल जाएगा। फिर लास्ट वाला बिजी सीजन जब वो पहुंचेंगे तब उनको छुट्टी होने की चिंता हो जाएगी कि सर मेरे को तो सीए फाइनल पढ़ना है। सो यू आर इन अ गुड पोजीशन, लेट मी टेल यू दैट, टू गेट 2 busy seasons. ओके, ये हो गया। अब आते हैं सर नाम सारे के सारे। तो इंदौर की फर्म्स के, अच्छी फर्म्स के नाम है, और ये नाम जब मैं दे रहा हूँ तो ध्यान रखना इस नाम में कोई रैंकिंग नहीं है, कोई प्रेफरेंस नहीं है, जनरली मैंने नाम की लिस्ट बनाई है। ओके, सो दीज आर इंदौर नेम्स, एंड देन आई विल बी गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ different name, different companies also across the nation also. I'll be giving you the PDF right now. पहले आप इनके नाम नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। I'll just arrange that for you. बस नमन, फर्म सजेशन के लिए डीएम क्या, सामने सामने सब लिख के दिया है, मैं अलग से डीएम क्या करूंगा उसका मतलब, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। और ये नमन कौन है, मतलब प्री रिजल्ट बैच का है या पोस्ट रिजल्ट वाला, कौन है ये नमन, भूल गया। फोटो भेज तेरा तो पता चले कौन है ये। हम्म, सब इतना क्लियर बता रहा हूँ, फिर क्या होगा पता है, डीएम में इफ आई डोंट रिप्लाई आई एम इन क्लासेस, देन यू से सर सर डॉट 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 डॉट। ये सेशन ही इसलिए लिया हुआ और उसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं साथ साथ।
मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा सब जगह, चिंता क्यों करने का। ये सब अच्छी फर्म्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी फर्म्स एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये मैंने नीचे लिखा है, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। ये जनरली जो नाम बच्चे हमको घूम घूम के बताते हैं ये वो हैं। ओके, इसके अलावा भी इंदौर में टोटल नाउ देर आर 4,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्किंग। यू कैन गो टू मानस भवन ऑन RNT मार्ग, you can go to Vaibhav Chambers, you can go to Silver Mall. In Chhaoni, you can go to Chartered Chambers. There is a separate building having only Chartered Accountants. Manas Bhavan Extension. You have Racecourse Road. You got loads of places. So ऐसा प्लीज ये मत सोचना, है ना। जैसे अभी यंगस्टर्स में एक MSMJ है, रोहित भाटिया एंड कंपनी है, स्पार्क एंड एसोसिएट्स बड़ी फर्म है, उसमें अपने रोहित खंडेलवाल सर भी पार्टनर हैं। बट लेट मी टेल यू, मतलब टीचर्स वर्सेस प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत अलग है। सो यू हैव टू फॉलो द ऑफिस रूल, करेक्ट। ये हो गया। ओके, इज द लिस्ट देयर? एक मिनट, लेट मी जस्ट गेट दिस। तब तक आई जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड गिव यू, मैं ये लिस्ट आपके साथ PDF में शेयर करूंगा, जस्ट अ सेक। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वाली बोल रहा हूँ मैं। शेयर द स्क्रीन। ये देखिए, पहले तो ये 4-5 तो बड़ी बिग फोर्स हैं, PwC, डेलॉयट, KPMG, EY, BDO, ग्रैंड थॉर्टन। 7th नंबर से मुंबई की चालू होती है, चतुर्वेदी, शाह, महाजन, नायबेरा, खिमजी, कुंवर जी, बंसी मेहता। ठीक है, मालपानी एंड एसोसिएट। फिर इंदौर की जो बड़ी फर्म्स है जिनके नाम मैंने आपको अभी लिखवाए वो यहाँ पर हैं। महेश सी सोलंकी, M मेहता एंड कंपनी, फडनिस एंड गुप्ते, गुप्ता नहीं है, गुप्ते है वो। अरोरा बंटिया, तुलसियान, गगन झंवर एंड कंपनी, CH पाडलिया एंड कंपनी, आनंद जैन एंड कंपनी, स्पार्क एंड एसोसिएट्स, खंडेलवाल काकानी एंड कंपनी। एक सेकेंड, जस्ट अ सेक, हाँ दे रहा हूँ, डोंट वरी, आई एम जस्ट रेफरिंग द राइट फाइल, दैट्स व्हाई। Okay, just a sec, I'll just share it till the time the other one also goes through. Is my screen visible to all of you? मतलब is the list visible बच्चों? Okay, just a minute. Just wait. अभी दिख रही है? तो ये इंदौर की मैंने कम से कम 20 फर्म्स, मतलब कितनी हैं, 13 से लेके 31 तक मैंने फर्म्स आपके सामने रखी हैं। ओके, देन I'll share this PDF, so don't worry on that. ओके, फिर नेक्स्ट पे और है श्याम भाटिया, जीजे शाह, खासगी वाला एंड कंपनी।
फिर सेंट्रल इंडिया रीजन में कालानी एंड कंपनी, भंडारी, इनके सिटीज भी हैं, जयपुर, फिर इंदौर की भी आ गई, मेन बढ़ जाती है सोजाती एंड कंपनी, फिर लखनऊ, कानपुर, पटना, रांची, फिर मुंबई में बहुत सारे आ रहे हैं आपके सामने नाम. So I think this will help you a lot to understand where to do, what to do. Correct? Ahmedabad, Baroda, Surat, Delhi, Bangalore, Secunderabad. Secunderabad is nothing but Hyderabad, okay? Chennai, Coimbatore, Kolkata, Guwahati, Bhubaneswar. ठीक है? Now what you are supposed to do? Sir, spoon feed तो नहीं हो सकता, but what you are supposed to do is you are supposed to work on this in terms of finding their email IDs, sending them proper emails. बराबर? तो एक तो ये हो गया, इसके बाद बॉम्बे पूना बता दिया. हाँ, देयर इज अ वेबसाइट ऑफ माइन एंड देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप कॉल्ड ऑल अबाउट आर्टिकलशिप. उसको प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें. मैं ऑल अबाउट आर्टिकलशिप ओपन करके आपसे उसका लिंक शेयर कर लेता हूँ. एक मिनट. उप्स, ये तो लॉग आउट हो गया. I'll open this here. Yes, firms outside Indore will conduct online interviews. You should be ready with that. आपको करना चाहिए, ट्राई भी करना चाहिए. आप अपना प्रॉपर ईमेल भेजो, ईमेल के साथ सीवी लगा के भेजो, अच्छे से ड्राफ्ट करके, जो मैंने आपको बताया है. एंड देन प्रॉपर कवरिंग ईमेल भी लिखो उसके अंदर. प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, चैट जीपीटी का हेल्प लेना है, बट सिर्फ चैट जीपीटी पे काम नहीं करना है. डोंट गेट इनटू दिस सिचुएशन दैट यू आर डूइंग जस्ट कट कॉपी पेस्ट. स्पेशली क्या होता है, चैट जीपीटी कुछ आइकॉन्स लगा के दे देता है, वो रॉकेट वॉकेट वाले. वो आइकॉन्स तो सबसे पहले हटाना. वो क्लियरली दिख जाता है 1 सेकंड में कि चैट जीपीटी है ये, है ना. ये ध्यान रखना प्लीज. उसके बाद एक मिनट, क्या है सर, जैसा एक जगह इंटरव्यू का प्रोसेस चालू हो गया तो कहीं और अप्लाई करे कि नहीं. यू आर सपोज टू अप्लाई मल्टीपल प्लेसेस बिकॉज दे विल बी ऑल्सो इंटरव्यूइंग मल्टीपल पीपल. प्लीज अंडरस्टैंड. So you have to apply at 3-4 places and it will happen. If you are selected at one, they will ask you to join immediately. Please remember one thing. ज्वाइनिंग के नेक्स्ट डे आप लोगों को एक आर्टिकलशिप एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, फॉर्म 102, 103. अच्छी सीए फर्म कभी भी फर्स्ट और सेकंड डे ये नहीं करेगी, बिकॉज दे नीड टू नो यू, दे नीड टू अंडरस्टैंड यू एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड देम. यू शुड नॉट बी डूइंग समथिंग लाइक दिस ऑन डे 1 और 2. ये वो डेस्परेट फर्म्स होती है जो आपको घेरने की कोशिश करती हैं. सो प्लीज मेक श्योर इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. तुमको बोलना होगा कि सर लेट अस गिव टाइम टू ईच अदर. वो बोलेंगे नहीं नहीं फिर हमारे पास दूसरे लोग हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ये मैनेज करना पड़ेगा. मैं बता रहा हूँ, दिस विल हैपन दैट इफ यू गो एन इंटरव्यू एट ए, बाय द टाइम यू गेट इंटरव्यूड एट बी, ए विल से यू आर सिलेक्टेड, लेट मी नो यू आर ज्वाइनिंग और नॉट. अब आपके मन में क्या होता है मैं बता देता हूँ. आप बोलते हो ए बी सी डी ई सबका ऑफर मेरे पास आ जाए फिर मैं डिसाइड करूंगा. ऐसा हो नहीं पाएगा. इट माइट हैपन दैट ए बी सी के बाद डी ई आपने इंटरव्यू दिया, लेकिन ए बी सी में से एक आपको बोले जवाब दो. सो इट माइट हैपन दैट डी और ई आपको छोड़नी पड़े. तो ये होगा. यू कांट, मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट अ सिचुएशन दैट यस दिस विल हैपन, आई कांट हेल्प इन दैट. सो यू टू टेक अ कॉल. कोशिश करके आप अपने जो वैलिड क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर पूछो. सर विल आई बी गेटिंग टैक्स एक्सपीरियंस, विल आई बी गेटिंग द ऑडिट एक्सपीरियंस विच इज नेसेसरी एंड नीडेड. वो होगा. करेक्ट. बिग फोर्स में आपको जब अप्लाई करना है तो आप उनकी करियर्स वेबसाइट से जा सकते हो, उधर अप्लाई कर सकते हो. रेफरेंसेस का प्रॉब्लम ये है, हर कोई आपको तसल्ली दे देगा, लेकिन आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा वहां पर, और इंटरव्यू देकर ही काम होगा. ये बता देता हूँ. रेफरेंसेस का ये मतलब बिल्कुल मत समझना तुम लोग कि तुम्हारा मैंने सीवी भेज दिया या किसी ने सीवी भेज दिया तो वो पूरा सिलेक्ट ही हो गया. ऐसा तो कभी भी नहीं होता है. सो यू हैव टू गो थ्रू दी रेफरेंसेस प्रोसेस, ओ सॉरी, गो थ्रू दी इंटरव्यू प्रोसेस. करेक्ट.
स्टैट ऑडिट में टैक्स का नॉलेज ऐसे मिलेगा, जब आप टैक्स ऑडिट करते हो, जब आप टैक्सेशन प्रोविजंस काम करते हो, तो सब मिल जाता है उसके अंदर. स्टैट ऑडिट इज द मेन थिंग व्हाट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डू. हाँ, अब नाउ प्रांजल हैज गॉट वन मोर क्वेश्चन. पहले तो ये अपना सीवी भी किसी और के हाथ भेज रही थी, अब बोलती है कि वी हैव टू चेंज, कैन वी चेंज आवर फर्म इन मिड ऑफ आर्टिकलशिप ड्यू टू चेंज इन डोमेन. Why do you want to do that? They will only give you that exposure. Be very clear, be very specific with them कि सर, और आप अपना परफॉर्मेंस दिखाओगे तो सामने वाला आपको काम देगा, वो काम करवाने के लिए ही बुला रहे हैं आपको. आप समझो ये चीज. आया? चलो, ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चंस और सारी बातें. अब आपके पास क्या ओपन हाउस है? लेट्स डिस्कस व्हाट यू वांट टू आस्क फॉर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स. हाँ, बिफोर दिस हैपेंस, स्टाइपेंड डिस्कस होता ही नहीं है दर्शन. स्टाइपेंड के रेट्स हैज बीन डिसाइडेड बाय आईसीआई इटसेल्फ. स्मॉलर सिटीज ओनली हैव दैट स्टाइपेंड लेवल. इसमें कोई नेगोशिएशन और बार्गेनिंग होती ही नहीं है. हाँ, इफ योर आईटी ट्रेनिंग एंड ओसी, ये तो अभी से नेगोशिएशन बार्गेनिंग पे आ गया दर्शन. दर्शन को लग रहा है ने दुनिया जीत ली है. अभी उसको मालूम नहीं है कि वो अभी एंट्री हुई है उसकी हवेली में. अभी हवेली के ठाकुर अभी इसका क्लास लेंगे रियलिटी में. ओके, आपकी आईटी ट्रेनिंग और ओसी ट्रेनिंग के बाद ही आर्टिकलशिप चालू होगा. अगर आप परस्यूइंग हो तो उनको बोल सकते हो कि सर, आई विल बी एबल टू ज्वाइन ओनली आफ्टर 17th March. एज सिंपल एज दैट. ओके, you all are allowed to unmute yourself. Okay, and you can ask questions if you have. So Anushka has a question. Yes, Anushka. Sir, first of all, good evening. Sir, Good. the career, uh, sir, the career objective portion of the resume seems a bit controversial. One senior told me that it's not necessary to put it there, while another person told me that it's an important thing and it should be there. So, what to do about that? So what to do? Here is a generic career objective. अब मैं ये दिखाता नहीं हूँ और बोलता नहीं हूँ, नहीं तो सारे बच्चे यही कॉपी कर लेंगे. ये रहा career objective. To acquire skills and gain experience in the CA profession. अब सारे बच्चे यही कॉपी कर लेंगे. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. और सब तुम लोग जाओगे एक जैसी फर्म्स में तो उनको सब दिख जाएगा टिप क्या है सब जने. इसके आसपास यू हैव टू चेंज इट अक्रॉस. प्लीज मेक श्योर. ओके. Yes, sir. Thank you. Anybody else? अस्मित से सर मैं दर्शन मैं बोलूं. जी दर्शन जी बोलिए. सर ये फाइनल के रजिस्ट्रेशन कब से करना पड़ेगा? जब आपकी इच्छा हो, अर्लियर द बेटर. अब आप उसमें दिमाग लगाओ कि मॉड्यूल पुराने नहीं हो जाएंगे, है ना. लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ ये वाला. नहीं सर, आप ही लगा लो. मॉड्यूल पुराने भी हो जाएंगे तो भी 250-500 रुपए में मॉड्यूल आ जाएगा नया. ठीक है. पता चला हाँ, तो अब रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं और अटेम्प्ट खसक गया, फिर मेरे को मत बोलना. तो मतलब अभी करवा लेना सर. हाँ, कर लेना ना. तो आज से मई 28 के लिए हो जाएगा रजिस्टर? मई 28 के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला. आर्टिकलशिप कंप्लीशन के 6 महीने बाद आपको एग्जाम मिलेगी. दैट इज क्लियर. आप आज भी रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो भी कुछ नहीं होना है. वो अच्छा आर्टिकलशिप हाँ, 6 महीने गिने जाएंगे. ये भूल ही गया मैं सर. रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म अलग अलग होता है, ये अभी याद आया मेरे को. चलो, ये फाइनल में ओके सर, आपको अब थैंक यू. ऐसी गलतियां एक्सपेक्टेड नहीं है. ओके सर, थैंक यू सर. हम्म. ये आपको लग somebody saying I don't have English which is good enough, big firms will select me. The more you answer in English, the better you answer in English, the more employable you are, because they will be sending you to different clients. वहां जाके वो आपकी लिमिटेशन थोड़ी ना देखेंगे कि अरे सर अंग्रेजी नहीं हमारी इतनी खास, फिर भी रख लीजिए हमें. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू गिव द इंटरव्यू इन इंग्लिश. सर आईसीएआई की कुछ प्रिस्क्राइब्ड छुट्टियां होती हैं क्या? ऐसा मैंने सुना था. 12 leaves total in 2 years. You are expected to work 35 hours in a week, and total only 12 leaves are allowed in 2 years.
Sunday मिलेगा, but other than that 12 leaves. Good CA firms, what they do is, if you work extra, they keep a record and they give you compensatory offs. For example, in busy season, you work 12 hours. So 12 hours completing becomes 60 hours in 1 week, for example. If it becomes 60 hours, then what will happen is those 60 hours out of 35, 25 hours will be taken as 3 days extra work done, which you can use at the end for taking leaves. Yuvraj Sir, Bagri, just a minute. Yuvraj Bagri, we discussed all the domains and then you have again asking the same question. I told you, if you get statutory audit, nothing like it. Statutory audit, tax, ये सब आप करो. This is the main work of chartered accountants. So, and that helps you to prepare for CA finals. My first thing is to clear CA finals. It is not about employment right now. You should be ready for exams. Okay. Yes, Aditya, please. Sir, am I audible? Yes, you are clearly audible, beta. Sir, in the 12th standard, I was a part of school cabinet discipline department. So Yes. can I add it as a leadership skill in my CV? Why not? I mentioned that also. Here it is. See, in co-curricular, MUN debate, sport activities, team leader. Very good. You can mention that. And also, sir, in the SM camp we had, I was the captain in one of the teams, so that will also be relevant, right? बिल्कुल लिखो ना बेटा. What is wrong in that? Whatever you have done, उसको लिखने में कोई problem नहीं है. Okay, sir. Thank you. Okay, Nida says, sir, do we need references for mid-sized firms too? See, the biggest reference is yourself. आपको अगर कोई रेफरेंस बोले तो बोलना सर इट कैन बी मेड अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट. और क्या, आप देखो बेटा, आप एग्जाम क्लियर करके जा रहे हो, सो यू योरसेल्फ आर अ रेफरेंस ऑन इट्स ओन. और वो रेफरेंसेस क्यों मांगते मैं बताता हूँ आपको. इफ यू लुक फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव, दे लुक फॉर अ रेफरेंस ओनली फॉर वन रीजन. व्हेन यू स्टार्ट थ्रोइंग टैंट्रम्स बिकॉज यू आर 19-20 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, बिजी सीजन में मेरे को देर हो रहा है, घर पे बुला रहे, मम्मी याद आ रही है, मम्मी की तबीयत नहीं खराब, मम्मी की तबीयत खराब है, दादी की तबीयत खराब है, तो बिजी सीजन में वो बचपना नहीं संभाल पाते, तो इसलिए वो रेफरेंसेस मांगते कि बाद में उसको बोल सके यार तुमने किसको भेजा है. अदरवाइज देयर आर नो नीड फॉर रेफरेंसेस. आप ढंग से जाके प्रेजेंटेबल बन के खड़े होते हो, प्रॉपर जवाब देते हो, कर सकते हो. यस यू एक्सक्यूज कैन मी स्टार्ट. सर, एक डाउट था मेरा. यस दर्शन, पूछिए. सर जैसे मान लो आपने एक ये बताई डोमेन स्टैट्यूटरी ऑडिट, और इसके लिए कभी कोई सा इंटरव्यू आ रहा है तो हमें प्रिपेयर क्या करें, मतलब जो एकेडमिक है जो इसे पढ़ के जो क्या रखे, जो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे. जो आपको ये पढ़ना है, लो मैं बता देता हूँ. ये सब जने ये वेबसाइट का ध्यान रखना. दिस वेबसाइट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर एवर. degree2placements.com. तो यहाँ पर आप जाएंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ वेरियस फील्ड्स पे जाएंगे. तो इसमें आपके लिए काम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, मैं बताता हूँ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. ये डाउनलोडेबल फाइल है. ये सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और ये इसके सॉल्यूशंस भी हैं. सो इफ यू हैव गॉट 73 क्वेश्चंस, यू हैव गॉट 73 आंसर्स आल्सो. समझे? तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. वेबसाइट नेम इज degree2placements.com. मैं दे देता हूँ. ओके सर, थैंक यू. गुड इवनिंग सर. एक मिनट बेटा. degree2placements.com.
और आपको अभी वो भी चाहिए ना, टॉप सीए फर्म्स का वो पीडीएफ, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों से चैट में। जस्ट अ मिनट। All of you got this? Yes, Nida, if you have a LinkedIn profile, you should mention that LinkedIn profile in your CV. ऋषि 10 बार डाउट है डाउट है डाउट है करके पूछ रहे हो, बोल रहे हो डीएम चेक करो, ये करो, सीधे सीधे पूछने में क्या हर्ज हो रहा है ऋषि? व्हाट इज सो सीक्रेटिव क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क मी? सिंपली अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. It's as simple as that. सर Yes, Asmit. सर जैसे बीकॉम के एग्जाम अगर क्लैश होते हैं और वो अनदर सिटी में है तो फिर वो अपन को प्रोवाइड करेंगे क्या वर्क फ्रॉम होम? पहली बात तो वर्क फ्रॉम होम कहीं पे भी नहीं मिलने वाला. स्टॉप दिस यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी एज एन आर्टिकल वर्क फ्रॉम होम. व्हाट विल यू डू फ्रॉम होम इन आर्टिकलशिप? You need to be very तो clear, सर sir, my BCom exams are from this date to this date. Will I be given leaves or not? They will say yes or no. Accordingly, you have to decide. ओके सर. Because एक बात और बता देता हूँ, आइडियली इट इज रिक्वायर्ड दैट जहां पर आप आर्टिकलशिप परस्यू कर रहे हो आपका कॉलेज वहीं होना चाहिए. और अगर बीकॉम आप रेगुलर कर रहे हो तो पॉसिबल कैसे है कि आप दूसरे शहर में आर्टिकलशिप कर रहे हो और एक शहर में आपका वो है कॉलेज? So you have to manage your BCom accordingly, and you have to be very clear on this condition with your boss also before signing that form 102 103. ओके सर. और पूछो. हाँ जी. गुड इवनिंग सर. यस लक्ष्य पूछिए. सर जैसे मेरा भी सर जैसे बीकॉम का वो कॉलेज चला है रेगुलर से सर डीयू से, तो सर वो 2026 में खत्म होगा मई में. तो सर उसके बाद अगर मैं आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करूँ तो सर वो मतलब थोड़ा एडवांस में कुछ रहेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको फिर थोड़ा अटेम्प्ट लेट होगा आपका बेटा, बस और क्या. एक साल सीए फाइनल का आप तो अपने सर उसमें जैसे वो प्रायोरिटाइज किसको करेंगे सर, जैसे जो मतलब उस समय मई अटेम्प्ट के मतलब आप न्यू डीयू में कौन से स्टूडेंट? कॉलेज में हो अभी? सर शहीद भगत सिंह. हाँ तो आप कॉलेज में हो और आपको कॉलेज परस्यू करना है. कॉलेज सुबह कब से कब तक रहता है? सर मैंने इवनिंग कॉलेज ऑप्ट किया था सर, जैसे सुबह मतलब वो सीए की क्लासेस करता है तो शाम को कॉलेज की. हाँ तो आप अभी भी शाम को कितने बजे कॉलेज रहता है वो उस हिसाब से आप बात करो अपने प्रिंसिपल से जिनके पास आप आर्टिकलशिप करोगे कि सर मेरे को आप रोज शाम को छोड़ देंगे तो मैं सुबह टाइम से आ जाऊंगा अकॉर्डिंगली. थैंक यू सर. ओके. यार पीहू अग्रवाल मैंने क्लास में अभी तो डिस्कस कर लिया. आईटी और ओसी बाकी है तो आप अपने उसमें बोल दिया ना शाम 5 बजे फ्री हो जाते हो तो आप अप्लाई तो करो, कम से कम तुम्हारी सीट तो रिजर्व हो. एक ही चीज कितनी बार बोलूंगा, आईटी ओसी बाकी है, आईटी ओसी बाकी है. आप अपने सीवी में लिखो आई एम परस्यूइंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स. बोला तो सही मैंने. आरची सेज बिग फोर या मिड साइज, उसमें बहुत कंफ्यूजन है. तो प्रो कॉन्स कैसे देखें और कैसे डिसीजन लें मैंने आपको बता दिया. आप बिग फोर में जाओगे तो आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में नहीं रह सकते. बिग फोर में आपका सिलेक्शन अगर होता है तो पहली बात वो इंदौर में नहीं रहेगा. यू हैव टू मूव टू अ बिगर सिटी. आपके जेब से पैसे लगेंगे. बिग फोर में 15 से 20 हजार रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड है, लेकिन आपका खर्चा भी होगा.
आप जैसे अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हो तो आप मान के चलना आर्टिकलशिप विल नॉट बी एबल टू कवर योर एक्सपेंसेस. यू हैव टू इन्वेस्ट अराउंड 15 to 20,000 रुपीज फ्रॉम योर पॉकेट. अगर आप इंदौर में बाहर से आके रह रहे हो तो आपका वो खर्चा एक्चुअल में चल ही रहा होगा. हॉस्टल है, मेस है, आपका पर्सनल एक्सपेंस है, तो वो फिर दूसरे शहर में होगा. ये बात मैं सबको क्लियर कर दूं. आर्टिकलशिप pays you stipend, they don't pay you salary. Stipend is just to honor you कि आप हमारे साथ टाइम दे रहे हो. Don't compare this with salary. Okay? सर और अपन अगर मिड साइज फर्म ही सिलेक्ट करें तो इंदौर ही सिलेक्ट करना चाहिए या मुंबई पुणे जैसी बिग सिटीज? All your choice बेटा, मेरे हाथ से नहीं है. आप कौन से शहर से हो अभी? बड़नगर से सर. हाँ, so you are coming out. Once you are coming out, so you can go out anywhere बेटा. आप बड़नगर से बाहर ही निकल रहे हो ना. आपको बॉम्बे भी वही है, पूना भी वही है, इंदौर भी वही है आपके लिए. इंदौर में सिर्फ हाँ आपको सर बट सेटिस्फैक्शन है कि वो मेरे घर से पास में है. हाँ सर और मतलब सब लोग ये भी बोल रहे हैं कि वन शॉट सीए फाइनलिस्ट का पैकेजेस ज्यादा बेटर होते हैं, तो मुंबई पुणे में तो मिड साइज में भी थोड़ा तो वर्कलोड होगा ही सही कंपेयर वर्कलोड टू. सब जगह रहेगा मैडम. चाहे छोटी फर्म जाओ या बड़ी फर्म जाओ, बिना वर्कलोड के सीए करने का कोई मतलब भी नहीं है. यू शुड हैव अ वेरी गुड आर्टिकलशिप. यू शुड स्लॉग, यू शुड वर्क हार्ड. ये है ना, अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्टाइल में कि बिंदास हम बैठे हैं, कॉफी पी रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, so that is not chartered accountancy. Let me tell you that. You have to work yourself very hard everywhere. ओके सर, थैंक यू. तो ये मन से डाउट निकाल लेना कि मैं आराम से कर लूंगी और आराम से हो जाएगा, वो होता ही नहीं है. सर जैसे बिग सिटीज में ट्रैवलिंग टाइम का भी तो इशू रहेगा, मतलब फिर ये पढ़ाई सारे में. ये सारे मैंने लिस्ट करे तो थे प्रोज एंड कॉन्स. ये क्या रहे आपके सामने. हाँ वो तो है. उसी चीज को रिपीट करने से क्या होगा. अभी ये करके रखा है सामने. ओके सर, ओके. अभी आप सब बच्चों को क्या वैलिडेशन चाहिए रहता है कि जो लिखा हुआ है फिर भी हम एक बार पूछ ले क्या बदल जाएगा. बेटा मैं क्यों बदल पाऊंगा, जो है वो है सामने आपके. सर एक ये भी डाउट था कि क्लासेस ऑफलाइन इस लेनी क्वेश्चन चाहिए से अगर मिल जाए कि ऑन. इस क्वेश्चन के बाद से 100 रुपए फीस है पर क्वेश्चन की. अब क्वेश्चन नहीं आएगा. अरे सर मैं मतलब पूछ ही रहा था. अब इस अभी से ही ले लो सर, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन डाउट था ये. बोलो बोलो. कि सर मतलब जो फाइनल की जो क्लासेस है अगर वो ऑफलाइन मिल रही हो तो मतलब ऑफलाइन मिलती है क्या वो? मुझे तो नहीं लगता आजकल ऑफलाइन क्लासेस होती है. आजकल अच्छा सब हाँ, ऑनलाइन ही मतलब चल मैं रहा है. यही पूछ रहा था कि अभी तक मैंने क्या सोचा नहीं. ऑनलाइन ही चल रहा है. ओके सर. हम्म. कहीं पे भी ऑफलाइन क्लासेस जब आप करने जाते हो ना तो आपको सुबह शाम जाना पड़ेगा. आपका आर्टिकलशिप टाइम अलाउ ही नहीं करेगा उस चीज के लिए. अभी लाइव क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन चलती है लाइव, तो सुबह अपना 2 घंटा बैठ के देख लिया. फिर आप कहीं, पता है बच्चे कैसे करते हैं कि गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं 1 घंटा, तो 1 घंटा अपने लैपटॉप पे इंटरनेट कनेक्ट करके लाइव क्लास अटेंड कर ली. ऐसा करते हैं. यूजुअली पॉसिबल नहीं है फिजिकल क्लासेस में जाना आसानी से. फाइनल की क्लासेस थोड़ी सी चैलेंजिंग ही होती है, इसीलिए बंद हो गई हैं. क्या है, आपको ऑफिस जाना रहता है ना बेटा. हाँ, इंटर में तो अभी ऑफिस जाना ही नहीं था, घर क्लास में बैठे थे बस. ठीक है सर. थैंक Neither there is no need to consider doing ACCA along with articleship. Let me be very clear. If you really want to clear chartered accountancy, focus all your energy and effort into one place. And it is very demanding, नीदा बेटा. It will be very demanding. अभी आपको मालूम नहीं है, इसलिए अभी अपने को लग रहा है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ. टाइम ही नहीं मिलेगा आपको. तो मत चालू करो. रजिस्ट्रेशन के खर्चे वगैरह सब कुछ है ना. ACCA इज प्रिटी सिंपल. आफ्टर CA इट विल बी अ वेरी सिंपल केक वॉक. एक बार CA कंप्लीट कर लिया तो ये सब बाद में छोटे छोटे कोर्सेज हैं आपके लिए. और ACCA आपका CA कंप्लीशन पे बहुत सारे सब्जेक्ट के क्रेडिट दे देगा आपको. डोंट फॉल फॉर ऑल द यूट्यूब इंस्टाग्राम एड्स विच आर ट्राइंग टू सेल यू कि इट इज ईजियर एंड मोर रिवॉर्डिंग राइट नाउ. लेट मी टेल यू, बहुत सारी ऑनलाइन एड्स आती हैं और बहुत सारे कॉल्स आते हैं आप लोगों को कि आप ACCA ज्वाइन कर लो, CA तो कंप्लीट होता है नहीं होता, अनसर्टेनिटी रहती है.
आपने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया मतलब आप में दम है, तो अब आगे बढ़ो। सर आर्टिकलशिप के साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जैसा कुछ होता है, वो क्या होता है, उसके हाँ, बारे में बताओ ना। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 2 साल में से 1 साल आप आखिरी में कर सकते हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टू गेट एन आइडिया हाउ इंडस्ट्रीज वर्क। मेरा हमेशा से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेके यही व्यू रहा है और आज भी रहेगा। अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती तो वो आर्टिकलशिप का पार्ट होती, वो ऑप्शनल है। एक बात बताओ, आप खुद सूजल, अगर आपके पापा की फैक्ट्री है और वहां पे कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आता है 6 महीने के लिए, आप उससे मेन काम कराओगे या सेकेंडरी काम कराओगे, जब पता है मुझे ये बाद में बंदा रुकने नहीं वाला है? हाँ सर, सेकेंडरी। हाँ, खत्म। और आपकी जनरेशन को पता है अभी आकर्षण क्या आएगा, मैं बताता हूँ। आप लोग जब फर्म में बैठे रहोगे आर्टिकलशिप में, सब आपको ये बोलेंगे कि वहाँ स्टाइपेंड 25,000 है, 30,000 है। तो आपको बड़ा मजा आएगा, यार 30,000 रुपये महीना अच्छा कमा रहा हूँ मैं। आपको कमाना है ही नहीं अभी। आप वहां पर जाकर अपने रूटीन चीजों से दूर होते हो, वहां पर आप उनके सिस्टम्स और उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करते हो जो उस इंडस्ट्री की वर्किंग है। वो इंडस्ट्री की वर्किंग आप वैसे भी सीख सकते हो आफ्टर बिकमिंग अ सीए, लेकिन क्या होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आदमी इतना बिजी हो जाता है कि उसका अटेम्प्ट कॉम्प्रोमाइज होता है। तो मेरे से पूछोगे तो आई विल गो बाय द ऑर्थोडॉक्स व्यू, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जंप करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। मतलब ये मैं बिल्कुल क्लियर कट चीज बता रहा हूँ आपको। सर हम्म। एक्चुअली मैंने मतलब इंटरव्यू के लिए सीवी मेरे मेल करे थे, तो हम्म। मैंने 3 जगह भी इंटरव्यू दिया। उसमें से एक जगह मुझे मतलब उन्होंने मंडे से ज्वाइनिंग का बोला है, बट मैं और इंटरव्यूज मतलब फर्म में देना चाहती हूँ। तो मैं मतलब फर्म को क्या रिप्लाई दूँ ऐसा कि Mullah sir, I am also looking for other firms also, and I am awaiting a reward from them. I have appeared for few more interviews, and I am awaiting a reward from them. Please allow me a weeks or 10 days time to decide. ओके। ओके See, सर। that is nothing wrong. हम झूठ बोल नहीं रहे, हम्म। हम स्पष्ट बोल रहे हैं। कुछ लोग हाँ। उसको नेगेटिव ले लेंगे, कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। ये तैयार रहना इस चीज के लिए। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। देखो इनफ स्कोर आकाश, इफ यू आर अ फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट, यू आर एज गुड एज फॉर बिग फोर। और बिग फोर डोंट लुक एट योर मार्क्स, बिग फोर लुक एट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, द वे यू प्रेजेंट एंड द वे यू हैंडल द इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर लैंग्वेज, सेकंड इज योर ड्रेसिंग सेंस, द वे यू आर हैंडलिंग द इंटरव्यू। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन इंटरव्यू की बात करूँ, आई जस्ट मिस्ड आउट सेइंग, आप इस तरीके से बैठना ऑनलाइन इंटरव्यू में कैमरा ऑन करके कि आपके हैंड जेस्टर्स नजर आए, पीछे दरवाजा नहीं होना चाहिए, आपका माइक वर्किंग होना चाहिए, घर वालों को बता दो कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है तो डिस्टर्ब न करें। और आप जैसे अभी आप सब लोग अपना कैमरा ऑन करो, मैं बता देता हूँ किसका बैठने का तरीका बिल्कुल बराबर आ रहा है। अभी जैसे बैठे हो वैसे ही आप ओपन करो, मैं आपको जस्ट आइडिया दे देता हूँ। देखो अब दर्शन का कैमरा वर्टिकल है जबकि हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, अब उसने ठीक करा। सूजल का प्रॉपर है, युवराज का चेहरा बहुत ज्यादा आगे है। आप अगर कल को कुछ समझाने बैठोगे तो हैंड जेस्टर्स नहीं दिखेंगे, एक हाथ की दूरी होना चाहिए, ऐसा मान के चलना वहां पे, समझे? पीछे क्लीन बैकग्राउंड हो सबसे अच्छा रहेगा। करेक्ट, माइक शुड बी वर्किंग एंड यू शुड टेस्ट ऑल दिस बिफोर योर इंटरव्यू स्टार्ट्स। सात्विक का जो अभी रखा हुआ है वो सही नहीं है, ऐसा ऑनलाइन इंटरव्यू अच्छा नहीं रहेगा सात्विक। मैं सिर्फ आइडियाज दे रहा हूँ बेटा, उसको बुरा मत मानना इन चीजों को, है ना? आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडियाज। पीहू, आपने वर्टिकल रखा है, आप हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो। आई थिंक यू आर राइट नाउ अटेंडिंग थ्रू मोबाइल, एम आई करेक्ट? यस सर। हाँ, कोशिश करके लैपटॉप से इंटरव्यू अटेंड करें। ओके सर। कुश का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अस्मित जैन ऑल ओके, लक्षिता ऑल ओके। पीछे गेट तो नहीं है वो बेटा, पीछे डोर तो नहीं है? नहीं सर, वार्डरोब है इसलिए। हाँ बस ठीक है। कोशिश करके पीछे क्लीन रखो, अपन ऐसी पोजीशन पे बैठ जाओ जैसे निदा का भी क्लियर है पीछे। दर्शन ने पूरे घर के दर्शन करा रहा है वो, मेरे को अभी नहीं चाहिए। सुजल का बिल्कुल क्लियर है, क्लीन बैकग्राउंड। और अभी अपन सबके आजकल वो गूगल मीट वगैरह में पीछे ब्लर करने का भी कॉन्सेप्ट आता है ना बैकग्राउंड्स को, सो यू कैन टेक दैट, दैट विल बी थिंग इजी।
और ओके, सर एक मेरा डाउट था, सॉरी, कम अगेन। सर पूछ लो। सर एक वो मेरा डाउट था, जैसे नो हम कोई आउट ऑफ टाउन अप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास, नो क्वेश्चंस फ्रॉम दर्शन नाउ। हम्म, एक्सक्यूज मी एनीबॉडी सर। एल्स? यस सुचिता बेटा। सर इफ मैंने एक साल बिग फोर में करा एंड देन मैंने सेकेंड ईयर कोई मिड साइज फर्म में कर लिया, तो लाइक फ्यूचर में जब मैं सीए बनने के बाद जॉब लेने जाऊंगी तो सीवी में कुछ इम्पैक्ट आएगा? आपको दिखाना पड़ेगा आपने 2 जगह कहाँ आर्टिकलशिप करी। नहीं तो सर ऐसा नहीं होगा कि डिग्रेड हो गया, आप लाइक बिग फोर से मिड साइज में आ गए तो कुछ प्रॉब्लम हुई होगी लाइक बिल्कुल पूछूंगा, फ्यूचर? मैं अगर इंटरव्यू हूँ आपसे जरूर पूछूंगा, व्हाई डिड यू लीव अ बिग फोर, देन यू हैव टू गिव अ प्रॉपर आंसर। ओके सर। So then you will come back saying I could not handle the pressure, I wanted to balance my studies. तो वो हो सकता है एम्प्लॉय करते टाइम बोले then the pressure will be more, far more higher here. नहीं सर, वो तो जस्ट एक्सपीरियंस के लिए था कि बिग फोर का भी एक्सपीरियंस और एक मिड साइज फर्म का भी एक्सपीरियंस हो। हाँ तो वो आपको जैसे बोलेंगे मैडम आप हमारे यहाँ पे भी एक्सपीरियंस लेके चली जाओगी, हम आप पे इन्वेस्ट क्यों करें, ट्रेनिंग दें, सिखाएं। आप 2 मिनट के लिए जो आंसर दे रहे हो ना बेटा, ये एक टेस्ट रखो, तुम लोग अपना सब जने जो भी आंसर आप देना चाहते हो एम्प्लॉयर को, एक बार एम्प्लॉयर की नजर से आंसर सोच के देखो कि ये आंसर उसको कैसा फील होगा कि मैं तो एक्सपीरियंस लेने आया हूँ। तो वो क्या बोलेगा, भाई हम सिखाने के लिए थोड़ी ना बैठे, हमारे साथ काम करना है तुम्हें। तो तुमको बोलना पड़ेगा टू क्रिएट अ प्रॉपर आंसर फॉर एवरीथिंग। यू कैन से दैट आई हैड माई हेल्थ इश्यूज और आई वांटेड टू कम बैक होम, आई हैड challenges for which I thought I could not continue this, or otherwise my department which I was into, it was getting into routine and monotonous work despite of being a brand name, so I wanted to have more exposure in my other fields of audit and taxation, therefore I chose to go into a mid-size firm. You have to create a proper answer. कोई गुनाह नहीं है सुचेता, हाँ अगर दोनों फर्म चेंज करा तो वो पाप नहीं है, ध्यान रखना। आप जो भी कुछ कर रहे हो उसका प्रॉपर जवाब देना आना चाहिए आप। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। Yes, I am not answering any questions from Darshan, sorry. ये सब रूटीन मस्ती वाले क्वेश्चन पूछ रहा है इसके लिए। नहीं नहीं सर, ये अब सीरियस वाला क्वेश्चन नहीं है अरे तेरी सीरियस तो मालूम है मेरे को, सुजल सर। समझ। एक वन लाइनर क्वेश्चन है सर, वन लाइनर। चल जल्दी पूछ। सर जैसे, सर अगर मैं जैसे अहमदाबाद में अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे पास एक लोकल एड्रेस है वहाँ का, तो मुझे वो डालना चाहिए कि मैं अभी जहाँ पे हूँ, जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ का डालना अहमदाबाद चाहिए? निवासी हो क्या? नहीं नहीं, आप मतलब वहाँ पे ऐसा एक है, मतलब बुआ का ही घर है वहाँ पे। ये नहीं नहीं फ्रॉडिया नहीं टाइप की आदतें क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ के हो वहां का लिखो ना। नहीं सर, वो कंफ्यूजन था इसीलिए पूछा। ओके। अच्छा क्या होगा अहमदाबाद का लोकल एड्रेस डालने से, क्यों जल्दी आर्टिकलशिप दे देंगे तुमको और बाद में तुम जाके होता है मैंने आपसे झूठ बोला। नहीं 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 सर, वो मैंने कहीं से सुन लिया था, वो मेरे दिमाग में आधा नॉलेज रह गया, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। भाई ये जिन लोगों ने तुम्हें ज्ञान दिया ना वो खुद प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सपीरियंस लोग नहीं है। ओके ओके, वो मैंने कहीं सुना था इसलिए मुझे मैंने मालूम है ना, पूछा। ऐसे ओके बहुत थैंक यू। सारा ज्ञान आता रहता है चारों तरफ से। सुजल समझा यार इसको यार। चलो वाह। नहीं इसका तो दोस्त कृष्णा है, कृष्णा इसको समझा तो शांति से जरा अलग से। हम्म। सर हाँ सुचेता, पैन इंडिया अगर फर्म्स हैं जिनकी प्रेजेंस, तो आपको लोकेशन प्रेफरेंस लिख के भेजना चाहिए, बिल्कुल सही है। आपका मेल का सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए सीवी फॉर आर्टिकलशिप, बोथ ग्रुप क्लियर्ड, मुंबई लोकेशन, ऐसा वर्टिकल बार में सीवी फॉर आर्टिकलशिप, वर्टिकल बार, मुंबई लोकेशन, बोथ ग्रुप्स क्लियर्ड, ऐसा सामने वाले को मेल खोलने से पहले ही समझ में आ जाए। मैं अभी ओवरऑल पिछले 1 घंटे में मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, सुजल योर कैमरा इज सेल्फ एडजस्टिंग, एम आई करेक्ट? आप आगे पीछे होते हो तो कैमरा सेल्फ एडजस्ट हो जाता है, इट इज गुड एक्चुअली। बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप घर पे जाके बोलो सेल्फ एडजस्टिंग कैमरा वाला लैपटॉप दिलाओ, ऐसा मत करना। हाँ बाकी सब लोग
ओके, सो कैन आई कॉल इट ऑफ? आज का दिन समाप्त कर सकता हूँ? सर वन ऋ- मोर क्वेश्चन। ऋषि रामचंदानी ने मुझसे अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। ऋषि, व्हाई कांट यू आस्क द क्वेश्चन डियर? पूछ ले भाई। तो यस सात्विक। सर मुझे एक डाउट ये भी है कि आपने जैसे हम लोग को फर्म के नेम दे दिए थे हम लोग को पीडीएफ में, तो मेनली हम लोग को जैसे अप्लाई करना है तो मतलब उन फर्म्स के ईमेल आईडी मतलब निकाल के गूगल से फिर उनको ईमेल सेंड करना है, प्लस जो आपने डिटेल्स दी हैं वो मेल में अप्रोप्रिएट डिटेल्स को मेंशन करना है ना, और उनको सेंड करना है, फिर उनका रिस्पॉन्स आएगा हमारे लिए, है ना? बिल्कुल बेटा, रिस्पॉन्स आएगा और आपको ये फॉलोअप मेंटेन करना पड़ेगा कि आपने कितनी जगह अप्लाई करा, कहाँ से रिप्लाई आया, वो एक्सेल शीट में मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको। ओके सर, ऑर्गेनाइज वे में। ओके सर, तो बस यही मेन मतलब मेनली हमको ईमेल ही करना है उनको, है ना? दैट इज इट। आपको ईमेल करना है, प्रॉपर उसमें डिटेल्स डालना है। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सात्विक अग्रवाल, सो आई विल राइट इनटू द ईमेल, डियर सर ऑब्लिक मैडम, यस सर। I am hereby applying for an articleship in your firm, ABC and Company. I am यस enclosing सर। my CV for your perusal to give you an idea about my capabilities and qualifications. I यस would सर। like to appear. I would like to appear for an interview also and follow the due process. Please let me know if you have vacancies. I am open for interview. Regards, ओके सर। Satvik Agarwal, email ID and mobile number. यस सर, और अपना सीवी अटैच करके उनको सेंड करना है ना? हाँ Alright, ओके। बेटा, और यस ध्यान सर। रखना सब जाने, हाँ, सीवी अटैच करे बगैर मेल मत भेज देना। हाँ यस सर, यस सर। गूगल इतना स्मार्ट है कि अगर लिखते हो ना सीवी इज अटैच और नहीं होता तो गूगल पूछ लेता पॉपअप करके कि अटैचमेंट इज मिसिंग। ओके सर। ओके, वंशिता इज अ क्वेश्चन, बीकॉम एग्जाम तक इंदौर में आर्टिकलशिप करने के बाद में मुंबई में आर्टिकलशिप कर सकते हैं क्या? मुंबई पीपल यूजुअली डोंट टेक ट्रांसफर्स, सो एंड इंदौर फेलो विल नॉट लीव यू ऑल्सो। आपको 4-6 महीना सिखाएगा और बोलेगा तुम सीख गए तो फिर उसके बाद हाँ जा रहे हो, ऐसा कैसा चल रहा है? तुम सब प्लीज समझो, तुम आर्टिकल हो, वहां पे काम करने जा रहे हो, वो तुम्हें सिखाने के लिए नहीं बैठे, उनकी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है, वो तुम्हारे लिए नहीं है सब कुछ। एंड सर एक क्वेश्चन और है कि अगर वहाँ पे किसी फर्म में ऐसा होता है क्या कि मतलब हम चेंज नहीं कर सकते मिड में, जैसे आपको किसी और फर्म में जाना है आर्टिकलशिप के लिए तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसा होता यूजुअली है क्या सर? क्या एक्सपेक्ट करते कि उन्होंने 6 महीना 7 महीना आपको बच्चे जैसा सिखाया और आप एकदम निकल लो, तो दे डोंट एग्री टू इट। वो कोई भी क्यों करेगा यार, आपको सिखाऊं मैं और काम कोई और करवाए तो फिर मैं बोलूंगा ना यार ये क्या है। ओके, तो मतलब मे बी वन 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 ईयर में फिर आपको चेंज करना है तो ही आप कर सकते हो, ऐसा मे बी, है ना? सजेस्टेड भी वही है ना, आप जिसके पास जा रहे हो वो भी देख रहा है कि तुम 5 महीने में छोड़ के आ रहे हो, तो वो भी ये सोचेगा कि ये यहाँ से भी भाग जाएगा 5 महीने में। हाँ। यस सर। दूसरे के एंगल से भी तो सोचो बेटा। यस सर। हम्म। ओके, चलो, आज के आनंद की जय। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और, और Do सर you सॉरी do सर attach ज्यादा the cover परेशान letter करना। also with CV or not? Your email yourself itself a cover letter. There is separate. There is no trend nowadays for a separate cover letter, so not needed. Okay. Now let me. You all have joined that all about articleship. यस सर। वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट उसकी। ऑल अबाउट आर्टिकलशिप ना, 1 मिनट। जस्ट अ मिनट, मैं आपको ऑल अबाउट आर्टिकलशिप का मैं वो भेज देता हूँ। अभी मेरे उसमें होगा, वो जो मैंने आपको पोस्ट भेजा था ना उसमें वो है, पर वो हाइपर लिंक पे नहीं है। सीए इंटर आर्टिकलशिप करके आप टाइप करोगे ना टेलीग्राम में, एक मिनट, ये रहा।
ये ऐसा टेलीग्राम में टाइप करोगे ना, सीए इंटर आर्टिकलशिप, यू विल गेट इट। नहीं तो ये रहा। एक मिनट में लिंक दे देता हूँ। मिला आप लोगों को टेलीग्राम पे सीए इंटर आर्टिकलशिप? डिड यू गेट दैट? कैन somebody share the link here in the chat for all of us? एक्सक्यूज मी सर। ये बहुत सारे लोगों ने दे दिया। एक मिनट, कॉपी लिंक एंड लेट मी शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। ये रहा। जस्ट अ मिनट। मीटिंग ग्रुप चैट पे नहीं जा रहा वो, सबके पास चला गया अभी। हाँ, लास्ट क्वेश्चन हु वाज आस्किंग? यस सर। यस सर पुणे, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर, इन चारों में ऐसा है क्या कि एक्सपोजर सेम मिलेगा या कहीं पे अलग कहीं पे If you अलग go to होगा? any of the big firm, the process of working is same everywhere. Their softwares, their methodologies, and everything will be same. Most of the times you have got multi location clients, तो वो ऐसा होता है कि अगर आपकी चारों जगह फैक्ट्री है पूरे इंडिया में किसी मल्टीनेशनल की, तो कुछ पुणे ऑफिस करता है, कुछ बॉम्बे, कुछ दिल्ली, और फिर लोग आपस में कनेक्ट होकर पूरा कंबाइन करते हैं। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कल्चर का होता है। मुंबई कल्चर दिल्ली कल्चर में फर्क है बस। ओके ऑफिस के सर। अंदर एक्सपोजर में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा? हेलो सर। यस सात्विक। सर एक लास्ट क्वेश्चन और है, जैसे आपने मेल आईडी के लिए हम लोगों के लिए कुछ बताया था, तो मुझे एक ये चीज बस पूछनी है कि जैसे मेरी मेल आईडी सात्विक ग्रावल है, बट मेरा सरनेम सात्विक अग्रवाल है, तो शुड आई हैव टू मेक न्यू ईमेल आईडी क्योंकि वो मेरी अप्रोप्रिएट नहीं है? बेटा नई आईडी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। चलेगा मतलब ऐसा ऐसा हाँ, ऐसा तो हम। तुम्हारा वो डिस्प्ले नेम तो सात्विक अग्रवाल आता होगा ना उसमें। हाँ बट जो मतलब जो मेरी मेन मेल आईडी तो उसमें सात्विक ग्रावल है, तो मतलब मुझे चेंज कुछ नहीं करना कर चाहिए? सकते, चलने दो। चलेगा ना? हाँ ओके। ठीक है, चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। एक बार जब जने जरा कैमरा दिखा दो तो मैं एक स्क्रीनशॉट लेके फोटो खींच लूं कि मैंने सेशन लिया। सब जनों का फोटो खुल जाए तो मेरे को भी दिखे, हाँ मैंने कुछ लोगों को पढ़ाया आज शाम को। एंड इफ यू अलाउ मी टू क्लिक अ फोटो, है ना? जस्ट अ मिनट, मैं एक दो फोटोज क्लिक कर लेता हूँ। दैट्स वन। अभी भी तुम सब लोगों को तुम्हारे आर्टिकलशिप फर्म की कसम है, सब जने कैमरा ऑन करो। अभी भी सबने ऑन नहीं करा कैमरा। एक एक दो मेरे को लेने दो। हाँ तो संयम मती खोल, तू बनियान में है तो कैमरा। जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। चलो गुड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ओके, व्हाट्सएप पे टच में रहो।
तुम्हारी नौकरी लगवाने का भी काम मेरा ही है 2 साल बाद। ओके चलो। और बाय द वे, जितने बच्चे एसएम के स्टूडेंट्स हैं, मैंने एसएम का तुम लोगों से फीडबैक मांगा था पेपर के बाद, एक ने भी नहीं भेजा है। क्यों भाई, इतना बुरा पढ़ाया है क्या? एक टेस्टिमोनियल व्हाट्सएप पे तो भेज सकते हो ना, वो भेज देना प्लीज। ओके चलो। चलो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।